गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एनसीईआरटी के सिलेबस में का 5th चैप्टर है 10th का, वो हमने कल शुरू किया था। शुरू में हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में दो क्लासिफिकेशन हमने देखे। फर्स्ट वन इज योर जोबेराइनर ट्रायड एंड सेकेंड वन इज योर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, and both, that is Dobereiner and Newland, focused on the atomic mass. Means both the scientists consider that atomic mass is the most fundamental property of element. Now here the third very important classification, which was given by Dmitry Mendeleev. Actually this is the base फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो कुछ भी हम आज स्टडी कर रहे हैं उसका जो बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट वन वाज गिवन बाय मेंडेलीव। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट साइंटिस्ट थिंक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, how elements are classified by Mendeleev's. Now the very important thing is that again Mendeleev's focused on the atomic mass of an element. Means according to Mendeleev's, again atomic mass is the most fundamental property of an element. He correlate atomic mass and its physical properties. What is the relation between atomic mass and physical properties? If the atomic mass changes, then how the physical properties changed? That relation found by Mendeleev, and on that basis Mendeleev classified the elements again in the increasing order of their atomic masses. Again here atomic mass is the fundamental property of element according to Mendeleev. And for this classification he focused on atomic mass, he focused on physical property, he gives the relation between atomic mass and physical properties. And for the classification of element, Mendeleev gives a very important law which is known as Mendeleev's periodic law. Then what is the Mendeleev's periodic law? Mendeleev's periodic law, which is stated as the properties of the elements, very important. The properties of the elements, are the periodic functions of their atomic mass. The properties may be chemical and physical, both chemical as well as physical properties. The properties of element are the periodic functions, periodic, repeated, parat na, which repeats. That one is called as the periodic. Are the periodic functions of their atomic mass. Means when the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, then Mendeleev found that some element repeat after certain interval which having the same properties as that of the above elements, having less atomic mass, increasing order of atomic mass. Some elements having the same property as that of the before elements which having less atomic mass as compared to that. Such a type is called the periodic property, repetition in the properties. And on the basis of atomic mass, on the basis of this periodic law, Mendeleev's periodic law, Mendeleev's classify the elements. Now the very important, classify the elements in the form of groups and in the form of periods. First time
these two terms are utilized in the classification of the element. पहली बार ये जो दो वर्ड्स है ग्रुप्स एंड एलिमेंट, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, एक फर्स्ट टाइम यूटिलाइज हुआ और एक किसने किया, मेंडेलियस ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप मतलब क्या है? इट इज नॉट अ कलेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड? पीरियड मतलब क्या? तो दोस्तों ग्रुप्स एंड पीरियड्स, नाउ कंसीडर द ग्रुप। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल। जो कुछ भी टेबल हम देखेंगे अभी, उसमें जो वर्टिकल्स कॉलम आपको दिखेंगे, दैट वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम्स which are present in the Mendeleev's periodic table, that are called as the groups. And what are the periods? There are some horizontal lines in that table. That horizontal lines which are present in the Mendeleev's periodic table, that horizontal lines are called as periods. Vertical called as the groups. देखो मैं यहाँ पे just symbolic representation देता हूँ। ऐसा अगर है तो वर्टिकल होगा, तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप। और if these lines are like this horizontal, then these are called as the periods. Vertical columns are called as groups and horizontal rows, these are called as the periods. Now here Mendeleev's periodic table is composed of groups and periods. अगर हम ग्रुप्स और पीरियड एक साथ मिला देंगे, when these are cross each other, then there is a formation of table takes place, and that one is nothing but your Mendeleev's periodic table. तो जब हम ग्रुप्स और पीरियड क्रॉस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बॉक्स फॉर्म हो जाएंगे, जिस बॉक्स में हम एलिमेंट प्लेस करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे मेंडेलियस ने हमें बोला है एटॉमिक मास इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल दोस्तों, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट, हियर वी कंसीडर द नंबर ऑफ ग्रुप्स, देन द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 8 and total number of periods are 12. एक्चुअली अगर आप बुक में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ से 6 हॉरिजॉन्टल रोज नजर आएंगे, 6 periods, but actually these are 12. Okay, and 8 vertical columns, these are the groups. 12 horizontal rows, actually these are in your book just 6 are represented, but these are 12, that are your periods. अगर ये 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स फॉर्म हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर फॉर्म, एंड हियर इन दैट बॉक्सेस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। उस बॉक्स में हम एलिमेंट प्लेस करेंगे, लेकिन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये जो फॉर्मुलेशन हुआ, पीरियोडिक टेबल जो फॉर्म हुआ बाय मेंडेलियस, I think in 1870, near about 1869 to 1872, in these years periodic table was formulated by Mendeleev, and at that time just 63 elements were known. उस टाइम पे 63 elements डिस्कवर्ड हो गए थे। तो उतने ही एलिमेंट यहाँ पे मेंडेलियस ने उस पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए, लेकिन आने वाले एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड होता है तो उसका प्रेडिक्शन भी उसने किया है, तो उसके मेरिट्स क्या है, डेमेरिट्स क्या है, तो हम बाद में देखेंगे ही, उसमें सब आ जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों उस टाइम 63 एलिमेंट नोन थे, तो इस 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई मेंडेलियस ने किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स, फॉर्मुलेट द टेबल, एंड दैट वन इज योर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ग्रुप्स और पीरियड, लेकिन ये सब दोनों साथ में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेरी सिंपली, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मुझे 8 ग्रुप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं,
तो हो गया आपका एक फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन and 8. These are the 8 groups, correct? Vertical columns are called as the groups. तो दोस्तों ये हो गया आपके 8 groups, vertical columns, okay? जिसमें से है आपका ये फर्स्ट, these are the groups. This is the second, third, fourth, fifth, sixth, 7 और 8 आ गया ना। ये हो गया आपके 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स। तो पीरियड्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट। दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड, दिस इज द थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। दिस आर द पीरियड 1 2 3 4 5 6। आपके बुक में सिर्फ 6 बताए हैं, यहाँ पे मैंने 3 बताए, टोटल कितने 12। ओके, तो दोस्तों इन दिस वे द फॉर्मुलेशन ऑफ टेबल टेक्स प्लेस। इसी तरह से मेंडेलिव्स ने एक टेबल फॉर्म किया और ये जो बॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, इन बॉक्स में मेंडेलिव प्लेस द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक मास यूज करके एलिमेंट को प्लेस करना है कि उस टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? 63। अगर हमें तो ये 63 एलिमेंट उसने प्लेस किए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन इससे भी बहुत इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो कैसे इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करेंगे? क्योंकि मेंडेलिव्स ने सिर्फ एलिमेंट प्लेस नहीं किए हैं दोस्तों, तो इसके साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज भी हम यूज कर सकते हैं, इसके साथ में फॉर्मुलेशन ऑफ पीरियड टेबल तो होगा, उसके साथ ही मेंडेलिव्स ने हमें हर एक ग्रुप जो है फ्रॉम 1 to 8 हर एक ग्रुप का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला देने का बहुत इंपॉर्टेंट काम मेंडेलिव्स ने यहाँ पे किया है। ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, these are the two different compounds। अगर आप ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में सोचेंगे तो ऑक्साइड क्या है, हाइड्राइड क्या है? जैसे कि XYZ एलिमेंट आपको दिया है, अगर उसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ होगा तो दोनों मिला के जो भी कंपाउंड तैयार हो जाएगा उसे बोलेंगे हम ऑक्साइड। मतलब सिंपली इट कैन बी डिफाइन एज, उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी अदर एलिमेंट। ऑक्सीजन के साथ कौन सा भी एलिमेंट कंबाइन होने के बाद जो भी कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, जैसे मैग्नीशियम व्हेन react with oxygen, magnesium is burned with oxygen, then there is a formation of magnesium oxide, MgO, this is your oxide। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद एलिमेंट जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑक्सीजन। द बाइनरी बाइनरी बाय 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 मींस 2, जिसमें 2 एलिमेंट है, एक तो ऑक्सीजन होगा और दूसरा कौन सा भी एलिमेंट जिसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होने वाला है। तो ये जो कंपाउंड है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑक्साइड। और सिमिलरली हियर सेकंड वन इज योर हाइड्राइड। व्हाट आर द हाइड्राइड्स? जैसे मैंने बोला अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है किसी एलिमेंट के साथ तो ऑक्साइड, वैसे ही अगर हाइड्रोजन कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ तो आपका हो जाएगा हाइड्राइड। जैसे आपने सुना होगा CH4 मीथेन, दैट मीन द हाइड्राइड, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन हो गया, बराबर है। सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा Na2H, सोडियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा MgH2। कैल्शियम के साथ हो जाएगा CaH2। तो ये हो गया हाइड्राइड, मींस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। और कंपाउंड ऑफ any element with hydrogen, that is hydride। कंपाउंड ऑफ any element with oxygen is called oxide, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मेंडेलिव्स ने यहाँ पे किया है, that one is your, he gives the formula of oxides and hydrides। कौन सा भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद या तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद
कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसका फार्मूला क्या रहने वाला है, दैट वन वाज गिवन बाय मेंडेलीव। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जो कुछ भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो उस ऑक्साइड का फार्मूला आ जाएगा आपका R2O। R मीन्स द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में जो कुछ भी एलिमेंट है, समझो यहाँ पे मैंने लिख लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे है आपका लिथियम, यहाँ पे समझो आपका सोडियम। अगर सोडियम ने ऑक्साइड फॉर्म किया तो Na2O, Li2O, हाइड्रोजन ने फॉर्म किया था H2O, H2 आपको पता है वाटर, करेक्ट। तो इन दिस वे अगर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करता है तो उसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, दैट वन इज योर R2O। इसी तरह से अगर ग्रुप सेकंड एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करेगा उसका फार्मूला आ जाएगा आपका RO। जैसे कि यहाँ पे है बेरिलियम, समझो यहाँ पे आपने दिया मैग्नीशियम। कौन सा भी एलिमेंट आप ग्रुप सेकंड से ले सकते हैं। तो बेरिलियम ने अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो BeO, ये ऑक्साइड का फार्मूला फॉर ग्रुप सेकंड। सिमिलरली इफ यू कंसीडर द ग्रुप थर्ड, तीसरा ग्रुप जो है, दैट गिव्स द फार्मूला R2O3। क्या हो गए, R2O3। जैसे कि यहाँ पे बोरॉन, या तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको दिया है Al2O3, Al2O3 आगे जन में Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड B2O3। सिमिलरली अगर ग्रुप 4 है, then it gives the formula of oxide RO2। what is the formula for group 4 oxide? group 4 oxide का formula RO2। जैसे कि यहाँ पे जो कार्बन है आपको पता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, correct? SiO2, CO2। fifth group, it gives the formula R2O5। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। सिक्स ग्रुप RO3, नाइट्रोजन के बाद आपका क्या आने वाला है, ऑक्सीजन या तो सल्फर, SO3। सल्फर कैन फॉर्म टू डिफरेंट ऑक्साइड, SO2 as well as SO3, so don't confuse about that. It may form RO2 or RO3, but here given is RO3, okay? Therefore write down RO3। seventh group R2O7। जैसे कि यहाँ पे आपका है फ्लोरीन, यहाँ पे आपका क्लोरीन, आप चेक कर सकते हैं बाद में है क्या नहीं। Cl2O7, R मतलब कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं यहाँ पे, F2O7, Cl2O7, टाई 2 बार क्लोरीन और 7 बार ऑक्सीजन, डाइक्लोरो हेक्टोक्साइड। आठवां जो ग्रुप है, दैट हैविंग द फार्मूला RO4। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मूलीज ऑफ ऑक्साइड हमको देने का काम किया है मेंडेलीव्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी ग्रुप के ऑक्साइड्स का फार्मूला क्या है, अगर आपको एलिमेंट मालूम है तो सबका फार्मूला आपको इजीली आ सकता है। जैसे H2O, Li2O, Na2O, BeO, MgO, R2O3 मतलब Be2O3, Al2O3, CO2, वेरी वेरी सिंपल, SiO2, N2O5, P2O, यहाँ पे फास्फोरस रहता है आपका, यहाँ पे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, P2O5, यहाँ पे SO2 पे आता है, यहाँ पे SO2 और SO3, F2O3 के नाम में Cl2O7। तो दोस्तों वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है जो कि मेंडेलीव्स ने दिया है, अगर ये आपको मालूम है तो आप कौन सा भी एलिमेंट आपको दिया है, जस्ट उसका ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, आप इजीली उसका ऑक्साइड का फार्मूला बता सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। इसके साथ ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एंड दैट वन इज द हाइड्राइड। मेंडेलीव्स gives the formula of hydride
फॉर एवरी ग्रुप एलिमेंट। जो कुछ भी एलिमेंट आपके सामने है, हर एक ग्रुप एलिमेंट का ऑक्साइड का फार्मूला तो हमने देख लिया दोस्तों। हाइड्राइड का फार्मूला भी देने का काम मेंडेलिव्स ने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट द फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स वेरी फास्ट। RH हाइड्राइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। हाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे हम याद रखेंगे। ग्रुप फर्स्ट का होगा RH, एक हाइड्रोजन बढ़ाना है सिर्फ। अगर हम ग्रुप सेकेंड के बारे में देखेंगे तो RH2 या RH3, एक हाइड्रोजन बढ़ाना है। RH4 बहुत सिंपल है। RH1, दिस इज RH1, 1 तो हम नहीं लिखते। RH1, RH2, RH3, RH4, here RH5, नो, एवरीडे इज नॉट संडे दोस्तों। यहाँ पे एक एक अभी कम करते जाना है, मतलब 4 अगर है तो 3 करना है। यहाँ पे RH3, RH2 एंड RH। देयर इज नो फार्मूला फॉर हाइड्राइड, फार्मूला फॉर योर ग्रुप एड एलिमेंट। तो इतना इजी है। अगर आपको अभी हाइड्राइड का फार्मूला मालूम है, बराबर है, अभी मालूम पड़ गया आपको, तो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करेंगे। हाइड्राइड मतलब क्या, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, कौन सा भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, उसका हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा उसे बोलेंगे हम हाइड्राइड। इन एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होने वाला कंपाउंड मतलब ऑक्साइड। अगर इधर में तो यहाँ पे अगर ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बन सकता है लेकिन इश्यू हो जाएगा। हमें बाइनरी कंपाउंड चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिया तो इश्यू हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में 2 डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, वो मैच नहीं होने वाला, बराबर है। तो यहाँ पे देखो अभी लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने वाला है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, LiH, लिथियम हाइड्राइड। NaH, RH, R मतलब ये एलिमेंट, NaH सोडियम हाइड्राइड। हियर यू कैन फॉर्म इजीली, बोलो जल्दी, यस यू कैन थिंक, यस, RH2, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, MgH2, Mg के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है। तो दोस्तों इजीली आप फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको बोला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का हाइड्राइड का फार्मूला क्या बोल सकते हैं आप, CaH2। यहाँ पे सिर्फ इस एलिमेंट को आपको लेना है, BH2, MgH2, CaH2, RH3, ग्रुप थर्ड। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा Be, सॉरी यहाँ पे नॉट बी, इट्स अ बोरॉन, ओके, BH3। ऑक्साइड का फार्मूला उसका B2O3, बोरॉन, इट्स नॉट बेरिलियम तो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट, B2O3। और हाइड्राइड BH3, बोरेन, AlH3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SiH4, CH4, मैंने पहले बताया आपको, CH4 मीथेन, सिलिकॉन, SiH4 सिलिकॉन हाइड्राइड, NH3 अमोनिया आपको मालूम है, NH3, PH3 फॉस्फीन मालूम है दोस्तों, वेरी सिंपल। अमोनिया तो आपको मालूम है वैसे ही फॉस्फीन आपने देखा है, मालूम है, उसका स्मेल आपने लिया है। जब हम माचिस जलाते हैं, माचिस मालूम है ना, तो माचिस जलाने के बाद, माचिस मतलब फास्फोरस है, उसको आगे जो रेड है ब्राउन, सो इट्स अ फास्फोरस। व्हेन यू बर्न दैट, देन दैट फास्फोरस कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन निग्लिजिबल है लेकिन है, तो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद जो स्मेल आपको आएगा, दैट वन इज द फॉस्फीन। तो यहाँ पे PH3 फॉस्फीन फॉर्म हो जाएगा, दैट वन इज योर सल्फर RH2, SH2। अरे इसका तो आपको मालूम है, ऑक्सीजन OH2 से हम H2O लिखते हैं, वाटर मालूम है ना, वाटर। देन RH, FH उसको हम HF लिखते हैं, ClH उसको हम HCl लिखते हैं, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब हो गए आपके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलीज, वेरी सिंपल। These are the formulas of oxide and hydrides for every group.
हर एक ग्रुप के लिए ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला देने का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट काम जो है वो मेंडेलिव्स ने किया है। तो उसके बहुत सारे और भी मेरिट्स है, लेकिन जैसे मेरिट है वैसे डिमेरिट्स भी, लेकिन दिस इज द फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ योर एलिमेंट। यहाँ से ही अदर साइंटिस्ट जो कुछ है उसने यहाँ यही बेस लेकर क्लासीफाई करने का प्रयास किया है। देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले दो तो हम इजीली रूल्ड आउट कर सकते हैं, डोबेराइनर का रूल्ड आउट कर सकते हैं, न्यूलैंड का रूल्ड आउट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इससे हम रूल्ड आउट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट देखना है, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या है, देन एटॉमिक मास के ऊपर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर किया है, देन ऑक्साइड फार्मूले, देन हाइड्राइड फार्मूले, और जो भी मेरिट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरिट्स और उसके साथ डिमेरिट। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक करेक्शन मैंने पहले ही बोल दिया आपको, पहले मैंने गलती से बेरिलियम लिख दिया था, एक्चुअली इट्स अ बोरॉन। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका मेंडेलियस क्लासिफिकेशन। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स, और उसके बाद जो आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट वन इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which was proposed by हेनरी मोसला in 1913। तो क्या है, कैसे, जो आज हम यूज करते हैं तो बाद में देखेंगे। आज हम रुकने वाले हैं दोस्तों। वीडियो जैसे ही आप शुरू करते हैं सबसे पहले आपको उसे लाइक करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल TSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसे पहले सब्सक्राइब करो। उसके साइड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन फॉर ऑल प्रेस करो, मतलब सभी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन देखते हैं आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पहले आपको करना है, वीडियो लाइक करो, उसे और सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन प्रेस करो। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपके दोस्तों को कुछ मालूम नहीं है, अभी उनका कुछ सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो, उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलो। आपका सभी टोटल ओवरऑल सिलेबस जो है 10th CBSE का NCERT का सिलेबस वो मैं सब कवर करने जा रहा हूँ। उसमें टोटल 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। उसका एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन आंसर सब हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब मत करना बोलो। और आखिरी में क्या, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।